Hello students, today we'll have class on idiopathic thrombocytopenia purpura. Okay, it's a blood disorder. First I will make clear about the terms. Idiopathic means the cause is unknown, right? Thrombocytopenia, that means decreased number of platelet in the blood, and purpura refers to the purple discoloring of the skin, which we can also called as bruise. Okay, so that's the condition, idiopathic thrombocytopenia purpura. It's a blood disorder characterized by abnormal decrease in the number of platelet in the blood. Okay, platelet आप लोग को पता है, these are the cells in the blood that helps to stop bleeding, right? तो अगर platelet नहीं रहेगा तो क्या होगा? Excessive bleeding होगा. So you can define idiopathic thrombocytopenic purpura as an immune disorder in which blood doesn't clot normally. This condition is now more commonly referred to as immune thrombocytopenia purpura. इसका नाम immune thrombocytopenia purpura क्यों किया गया? Because ये एक immune disorder है जिसमें body एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिसके वजह से बॉडी के सारे प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं. ठीक है, और फिर ये अपने आप भी सही हो जाता है, राइट? वो एंटीबॉडीज़ बनाना बंद भी कर देती है. तो इसीलिए इस कंडीशन को इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा भी बोला जाता है. ठीक है, बेसिकली देर आर टू टाइप्स, acute thrombocytopenic purpura and chronic thrombocytopenic purpura. Okay, acute thrombocytopenic purpura is the most common form of ITP found in children. Children's में ATP common होता है and it usually occurs between age 2 to 6 years old. It starts suddenly and the symptoms usually disappear in the last 6 months, often within a वीक. ओके, ये जल्दी सही हो जाता है, 6 मंथ तक नहीं जाता, 6 मंथ के अंदर ही सही हो जाता है, कभी कभार 1 हफ्ते में ही सही हो जाता है एक्यूट thrombocytopenic purpura. लेकिन chronic thrombocytopenic purpura, the onset of the disorder can happen at any age and the symptoms can last a minimum of 6 months, several years or lifetime. Chronic thrombocytopenic purpura ज़्यादातर adults में होता है, लेकिन children's में भी कभी कभार हो जाता है. होता भी तो older children's में होता है और इसमें ये more than 6 month exist करता है. Okay, so these are the two types of ITP: acute immunothrombocytopenic purpura and chronic immune thrombocytopenic purpura. ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल गया है कि ये कंडीशन क्या है. इडियोपैथिक मैंने बोला ना, द कॉज अननोन है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट है इसमें, और पर्पुरा मतलब पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग. ओके, और उसके 2 टाइप्स देखा हमने, एक्यूट एंड क्रॉनिक. कॉजेज़ देखा जाए तो इम्यून एरर, जैसे इम्यून सिस्टम में एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है, तो ये किस कारण से हो सकता है? कभी कभार कुछ मेडिकेशन के कारण हो सकता है. ओके, जो एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शन, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, एड्स होता है, दिस कैन रिएक्ट विथ प्लेटलेट. ओके, अदर देन चिल्ड्रन इट कैन ऑल्सो अकर इन प्रेग्नेंट वुमेन and also in children suffering from other immune disorder like rheumatoid arthritis and lupus disorders. Okay, सबसे बड़ी बात, इसके बहुत सारे causes unknown होते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम इस कंडीशन को idiopathic बोलते हैं. Okay, next are the symptoms. सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है पर्पुरा, दैट इज़ द पर्पल कलर ऑफ द स्किन आफ्टर ब्लड हैज़ लीक्ड अंडर इट. ओके, अ ब्रूइज इज़ अ ब्लड अंडर द स्किन. ओके, सो पर्पुरा आपको कंडीशन समझ में आ गया है. इसमें जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आप स्किन में पर्पल, जैसे कि कभी इंटरनल इंजरी हो जाता है तो एक ब्लीडिंग होता है ना, वैसा टाइप का कंडीशन आपको दिखेगा पर्पुरा. और ये वाला जो ब्रूइसेस है, इट कैन अपीयर एट द जॉइंट्स, नीज जस्ट फ्रॉम मूवमेंट. जैसे चलते फिरते रहेगा बच्चा तो यू कैन सी इट इन द जॉइंट्स एंड इन द एल्बो एंड नीज. ओके, पेटेकिया, इट्स अ टाइनी रेड डॉट्स अंडर द स्किन that are a result of very small bleeds. Then you can find some nose bleeding. Okay, then bleeding in the mouth or in around the gums also you can see. Then blood in the vomit,
urine or stool also you can see, and bleeding in the head. So ultimately it's a blood disorder, so you will find everywhere bleeding 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 bleeding. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है, एक आपको परपुरा के बारे में बताना है, दूसरा है पेटेकिया के बारे में. ओके, परपुरा आई थिंक द पर्पल कलर ऑफ द स्किन दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्लड दैट इज लीक्ड अंडर इट, एंड पेटेकिया इज द टाइनी रेड डॉट्स अंडर द skin that is also taking place because of very small bleed. ओके, और ब्लीडिंग इन द हेड जो हमने देखा लास्ट वाला सिम्टम, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है. ओके, और ये तभी होगा जब प्लेटलेट काउंट बहुत कम होगा. ओके, गोइंग बिलो 10,000. ओके, देन इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट में पहला जो है वो है CBC, दैट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट. दिस मेजर द साइज, नंबर एंड मेच्योरिटी ऑफ द डिफरेंट ब्लड सेल्स इंक्लूडेड इन प्लेटलेट. अगर एबनॉर्मल प्लेटलेट प्रोटेक्शन हो रहा है या प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज वर्क कर रहे तो डिस्ट्रैक्शन उसका ज़्यादा हो रहा है, तो दिस ऑल कैन बी सॉर्टेड आउट थ्रू दिस कंप्लीट ब्लड काउंट. एडिशनल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट हम क्यों करते हैं? ब्लीडिंग टाइम डिटेक्ट करने के लिए, दैन कोई इन्फेक्शन है कि नहीं बच्चे को ये पता करने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट करता है ये कंडीशन को. ओके, एंड बोन मैरो एस्पिरेशन इज ऑल्सो डन टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट. ओके, एबनॉर्मल प्लेटलेट प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है जिसके वजह से लोअर प्लेटलेट काउंट है कि नहीं, ये देखने के लिए हम करते हैं. Okay, so that's all about the diagnostic test. Next is the management. Management में we'll start the management of idiopathic thrombocytopenia purpura with steroids. Okay, steroids, this help in preventing bleeding by डिक्रीजिंग द रेट ऑफ प्लेटलेट डिस्ट्रैक्शन. प्लेटलेट डिस्ट्रैक्शन को ये रिड्यूस करता है जिसके वजह से ब्लीडिंग प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये इंक्रीज भी करता है प्लेटलेट काउंट को विद इन 2 to 3 weeks. ओके, सो दैट्स द थिंग स्टेरॉइड्स डू. लेकिन स्टेरॉइड्स का हम सबको पता है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक इरिटेबिलिटी, स्टमक इरिटेशन, वेट गेन, हाइपरटेंशन, एक्नी एंड ऑल. सो दैट्स अ साइड इफेक्ट. अदरवाइज स्टेरॉइड इज हेल्पफुल टू इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट. सेकेंड वाला क्या है? इंट्रावीनस गामा ग्लोबुलिन. ये क्या है? एक प्रोटीन है जिसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो प्लेटलेट डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं. ओके, सो इंट्रावीनस गामा ग्लोबुलिन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया गया है कंपेयर टू स्टेरॉइड्स, बिकॉज इंट्रावीनस गामा ग्लोबुलिन से 24 से 48 आवर्स में ही प्लेटलेट इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, सो पहले हम स्टेरॉइड देते थे, लेकिन स्टेरॉइड में इतने साइड इफ़ेक्ट्स के कारण आजकल हम प्रेफर करते हैं कि इंट्रावीनस गामा ग्लोबुलिन हम पेशेंट को दें, ताकि प्लेटलेट काउंट भी विद इन 24 to 48 आवर्स इंक्रीज़ हो जाए. Okay, otherwise steroid is also effective, but in patient who is showing a lot of side effect or who cannot tolerate the steroids, we can prefer intravenous gamma globulin. Okay, इसके अलावा RH immunoglobulin also given to the patient to temporarily stop the spleen from destroying platelet. As you know that platelet का distraction spleen में होता है. Okay, so RH immunoglobulin दिया जाता है ताकि कुछ समय के लिए platelet distraction को रोका जाए. ओके, सो दैट इज़ द मैनेजमेंट. इसके अलावा स्प्लीनेक्टमी भी कुछ कंडीशन में किया जाता है. बेसिकली ये ओल्डर चिल्ड्रन में एंड द चिल्ड्रन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ITP उनमें ही किया जाता है. ओके, ताकि प्लेटलेट डिस्ट्रैक्शन को हम कम कर सकें. देन रिटुजान एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी एंड रोमिप्लोस्टिम. ओके, these all drugs are given. एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है? कि एंटी प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन कम हो जाए. और रोमिप्लोस्टिम क्यों दिया जाता है? ताकि बोन मैरो को वो स्टिमुलेट करके नए प्लेटलेट्स को बना सके. ओके, सो RH इम्यूनोग्लोबुलिन, इट स्टॉप्स द स्प्लीन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग प्लेटलेट्स. स्प्लीनेक्टमी ओल्डर चिल्ड्रन में कर सकते हैं हम. Rituzan, that is the antiplatelet antibody protection also you can give, and you can give certain drugs like romiplostim and L-thrombopac, which stimulate the bone marrow to produce more platelets. Okay, so that's about the management of idiopathic thrombocytopenia purpura. ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, इट्स अ इम्यून डिसऑर्डर जिसमें एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट काउंट. ओके, एंड प्लेटलेट का आपको काम पता है कि वो ब्लीडिंग स्टॉप करने में हेल्प करता है. तो अगर प्लेटलेट नहीं रहेगा तो ब्रूइसिंग, ब्लीडिंग गम्स, इंटरनल ब्लीडिंग यू कैन ईजली फाइंड इन द
पेशेंट। ओके, और जो नाम इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट, एंड पर्पूरा मीन्स पर्पल डिस्कलरेशन आपको स्किन में दिख सकता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें मेन इसका सिम्टम्स आपको दिखना है, कॉजेज़ आपको पता होना चाहिए, एंड द मैनेजमेंट। इसका प्रोग्नोसिस देखा जाए तो बहुत अच्छा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इम्यून डिसऑर्डर है जो अपने आप सही हो जाता है। ओके, दैट्स वाई द प्रोग्नोसिस इज गुड।